انسان کی بنیادی ضرورتیں روٹی، کپڑا اور مکان۔ ان میں لباس یعنی کپڑا انسان کے تن ڈھکنے سے اس کی شروعات ہوئی تھی، آج یہ فیشن بن گیا ہے۔ آج بازار میں بہت سارے قسم کے کپڑے موجود ہیں، بچوں سے لے کر بڑوں تک، اور گھر میں ضرورت کے تمام کپڑے ہم بازار سے لاتے ہیں۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کپڑا بازار تک کہاں سے آتا ہے؟ آج ہم کپڑے کی کہانی پڑھنے والے ہیں۔ ہمارا سبق نمبر 10، ماحول کا مطالعہ، حصہ اول، جماعت چوتھی۔ یہ سبق میں آپ کو اچھے سے سمجھاؤں گا، پوری طرح بتاؤں گا۔ میرا نام ہے سید وصی الدین اور آپ دیکھ رہے ہیں تعلیمی سمندر۔ آئیے بچوں، اپنا سبق نمبر 10 لباس یہ شروع کرتے ہیں۔ آئیے یہ کر کے دیکھیں۔ پیارے بچوں، آپ کو ایک تجربہ کرنا ہے۔ تجربے کے نکات آپ کو اپنی کاپیوں میں، بیاضوں میں اندراج کرنا ہے۔ ایک کپڑا لے کر اسے عدسے کے نیچے دیکھیے، آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ اناج کے تھیلے غور سے دیکھیے، وہ کس طرح بنے ہوئے ہیں۔ درزی کے پاس جائیے، درزی سینے کے لیے کپڑے کاٹتا ہے، اس کے پاس سے بیکار کپڑے لیجئے۔ اس کے کنارے پر آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ یہ تمام سوالات کے جوابات آپ ڈھونڈوں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دھاگا ایک دوسرے میں پرو کر کپڑا تیار کیا جاتا ہے۔ دھاگے ایک دوسرے میں پرونا یعنی بننا۔ لمبے دھاگے بن کر کپڑا تیار کیا جاتا ہے، اسے بنائی کہتے ہیں۔ اور لمبے دھاگے کہاں سے آتے ہیں؟ اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے آپ کو یہ کر کے دیکھنا ہوگا۔ آئیے یہ کریں اور دیکھیں۔ گھر میں سے کپاس لیجئے، اس کو جس قدر لمبا کر سکتے ہیں کیجئے، ہتھیلی پر رکھ کر اسے ایک جانب بل دیجئے۔ کیا ہوتا ہے اس کا اندراج کیجئے۔ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ کپاس کی لمبی بتی تیار ہو جاتی ہے۔ پچھلے زمانے میں کپاس کے ذریعے سوت تیار کرنے کے لیے چرخہ استعمال کیا جاتا تھا، اب یہ عمل مشینوں کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ کپاس کے دھاگے سے کپڑا تیار ہوتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں ہمارے ملک کو آزاد کرانے کے لیے مہاتما گاندھی نے عوام میں سودیشی چیزیں استعمال کرنے کی تحریک چلائی تھی۔ اس کے لیے انہوں نے سوت کاٹنے کے لیے چرخے کا استعمال کیا تھا۔ ملک بھر میں سوت کاٹنے کے چرخے، بورڈ بنائے اور سودیشی چیزیں استعمال کرنے کا پیغام دیا تھا۔ کیا کپاس کے علاوہ بھی کسی اور چیزوں سے کپڑا تیار کیا جا سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب ہم اس طرح تلاش کرتے ہیں۔ آئیے یہ کر کے دیکھیں۔ بچوں، ایک کپڑے کی دکان پر جائیے اور ذیل کے سوالات جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ ان سے کیجیے۔ دکان میں کون کون سی قسم کے کپڑے ہیں؟ کیا ان کپڑوں کے مخصوص نام ہیں؟ یہ کپڑے کس چیز سے تیار ہوتے ہیں؟ اس کا اصل ذریعہ کون سا ہے؟ یہ کپڑے کون سے علاقے سے آتے ہیں؟ ان سے مختلف قسم کے کپڑے کے نمونے لیجئے۔ دکاندار سے حاصل ہونے والی معلومات کا اندراج اس جدول میں کیجئے۔ کپڑے کی قسم، وہ کون سی شے سے بنتا ہے، اہم ذریعہ کون سا ہے، کہاں بنتا ہے۔ جیسے کپڑے کی قسم سوتی کپڑا، وہ کس شے سے بنتا ہے، کپاس۔ اہم ذریعہ کون سا ہے، نباتات یعنی پودوں سے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ کہاں بنتا ہے، اس کا علاقہ ہے بھیونڈی۔ اس طرح آپ دوسرے کپڑوں کے نام پوچھ کر یہاں اندراج کر سکتے ہیں۔ اب آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ کپڑے مختلف اجزاء سے مل کر بنتے ہیں، مثلاً کپاس، اون، پٹسن، نائلون، ریان وغیرہ۔ ان میں سے کچھ کے ذریعے نباتات ہیں اور کچھ کے حیوانات ہیں اور کچھ مختلف ذرائع سے حاصل ہوتے ہیں۔
अब दुकानदार के पास से लाए हुए कपड़ों के नमूनों को एक जगह रखिए। आइए दिमाग पर जोर दें। नायलॉन और रियान कोल तार जैसी शय से बनते हैं, लेकिन कोल तार का असल जरिया कौन सा है? आइए इसका जवाब तलाश करते हैं। कोयले को गर्म करके मुख्तलिफ गैसों से गुजारा जाता है, तब जाकर कोल तार हासिल होता है। आइए आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, कपड़े की बुनाई। क्या आप जानते हैं कपड़े दो तरह से बुने जाते हैं? सुइयों की मदद से घर में दरवाजे के पर्दे, स्वेटर, कान की टोपियाँ वगैरह जैसी चीज़ें बनाई जाती हैं। नंबर 2, हैंडलूम या पावरलूम का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर कपड़े बुनने के लिए होता है। आइए ये करके देखें। एक छोटी बाल्टी में साफ पानी लीजिए, इनमें कपड़ों को भिगोइए जिन्हें आपने दिन भर इस्तेमाल किया। 1 घंटे के बाद ये कपड़े बाल्टी से बाहर निकालिए। बाहर निकालते वक्त इन्हें बाल्टी में निचोड़िए। अब बाल्टी के पानी का मुशाहिदा कीजिए। बाल्टी का पानी साफ है या इसी तरह इसमें कुछ तब्दीलियां हो गई है, इसका मुशाहिदा कीजिए। आपके जहन में आएगा कि जब हम कपड़े इस्तेमाल करते हैं तो वो मैले हो जाते हैं, जिस तरह पानी मैला हो गया। बताइए तो भला कपड़े मैले होने के कौन कौन सी वजूहात है, ये आपको बताना है। इन वजूहात को फहरिस्त में लिखना है, यानी कॉपियों में हमको फहरिस्त बनाना है। इससे ये वाज़ेह होता है, जब हम तमाम वजूहात मालूम करेंगे तो ये वाज़ेह हो जाएगा कि हमारे कपड़े कई वजूहात से ख़राब हो जाते हैं। इसलिए कपड़े साफ़ करना ज़रूरी होता है। साफ़ कपड़े पहनना एक अच्छी आदत है। सेहतमंद रहने और सलीक़े-मंदी के लिए और सलीक़ा-मंदी का मुज़ाहरा करने के लिए हमेशा साफ़ कपड़े पहनना ज़रूरी होता है। आइए ये करके देखें। आपके घर में कपड़े किस चीज़ से धोते हैं ये मालूम करो। लॉन्ड्री में कपड़े धोने के लिए क्या इस्तेमाल होता है ये भी पता करो। कपड़े धोने के लिए किराना दुकान में कौन कौन सी किस्म के साबुन मिलते हैं हमको मालूम करना है। ऊपर दिए हुए सवालात के जवाब हम जब तलाश करेंगे और इसकी फहरिस्त बनाएंगे तो हमको पता चलेगा कि कपड़ा धोने के लिए मुख्तलिफ़ चीज़ों का इस्तेमाल होता है, जैसे साबुन, मुसफ़ा, माया साबुन वगैरह। ऊपर दी हुई चीज़ें ना हो तो क्या कपड़े धोए जा सकते हैं? इसका जवाब आपको हाँ में मिलेगा दोस्तों, क्योंकि जब सरफ और साबुन नहीं था तब भी लोग अपने कपड़े साफ करते थे। वो कैसे, आइए ये करके देखते हैं। किराना दुकान से रिट्ठे लाइए, इन्हें नीम गर्म पानी में भिगोइए, इस पानी को हिलाइए, देखिए क्या होता है। अब इस पानी में कपड़े भिगोकर निचोड़िए। आधे घंटे के बाद कपड़े का मुशाहिदा कीजिए। अब क्या कीजिए कि कपड़े धोने का सोडा नीम गर्म पानी में डालिए और पानी को हिलाइए, देखिए क्या होता है। देखिए कि कपड़े साफ हुए या नहीं, इसमें भी कपड़े डालना है। रिड्ढा, सोडा, हिंग, बेड, चुनखड़ी वगैरह का इस्तेमाल करके कपड़े धोए जा सकते हैं। ये सब कुदरती चीज़ें हैं जो पहले इस्तेमाल होती थी। बताइए तो भला आप पहली जमात में जो कपड़े इस्तेमाल करते थे, क्या अब भी वही कपड़े आप इस्तेमाल करते हैं? अगर नहीं तो आप अब कौन सा कपड़ा इस्तेमाल करते हैं? पहले के कपड़े अब इस्तेमाल न करने की क्या वजह है? अपने बचपन का पसंदीदा लिबास आप आज क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते? आप जो कपड़े इस्तेमाल करते हैं इन्हें क्या करते हैं? वालिदैन, दादा दादी से गुफ्तगू कीजिए, इस बारे में मालूमात हासिल कीजिए। पुराने कपड़े का क्या क्या किया जा सकता है ये मालूम कीजिए। आइए ये करके देखें। क्या आप जानते हैं कि पुराने कपड़े के बदले नए बर्तन मिलते हैं?
पुराने कपड़ों के बदले नए बर्तनों का कारोबार करने वालों से गुफ्तगू कीजिए, बातचीत कीजिए। इसके लिए झेल के नुकात की मदद लीजिए, यानी झेल की ये सवालात की मदद से उनसे मालूमात हासिल करना है, जो मैं आपको बताऊंगा अभी। नंबर 1 सवाल, पुराने कपड़े लेकर वो इसका क्या करते हैं? नंबर 2 सवाल, क्या पुराने कपड़ों में से अच्छे कपड़े और फटे हुए कपड़े अलग अलग किए जाते हैं? नंबर 3 सवाल, अच्छे कपड़ों का क्या किया जाता है? नंबर 4, वो कौन लेते हैं? नंबर 5, फटे हुए कपड़ों का क्या करते हैं? नंबर 6, क्या कुछ कपड़े खुद के लिए रख लेते हैं? नंबर 7, पुराने कपड़े लेकर नए बर्तन देने में इन्हें क्या फ़ायदा होता है? हासिल शुदा मालूमात का इंदराज करने के बाद देखिए कि क्या आपकी मालूमात हमारी मालूमात से मिलती जुलती है। नंबर 1, कपड़े मजबूत होते हैं, वो पुराने हो जाते हैं तब भी इनका दोबारा इस्तेमाल हो सकता है। पुराने कपड़े अगर अच्छी हालत में हो तो हम इन्हें ज़रूरतमंदों को दे सकते हैं। कपड़े फटने पर इनसे रज़ाई, पाव पोश वगैरह बनाए जाते हैं। इन कपड़ों के धागे अलग करके नए कपड़े बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल फटे पुराने कपड़ों की लगद्दी तैयार करके इससे कागज़ बनाया जा सकता है। इसका इस्तेमाल प्लेट, कागज़ के फूल तैयार करने में होता है। इस लगद्दी से मॉडल भी बनाए जाते हैं। आइए ये करके देखते हैं। स्क्रीन पे आपको जो तस्वीरें नज़र आ रही है, इनमें फ़र्क को समझें। कपड़ों में क्या क्या फ़र्क है इसको समझना है। आपके अतराफ या दूसरे शहर में जाने पर आपको तस्वीर में दिखाए जा रहे कपड़े पहने लोग नज़र आएंगे। इनसे मुलाकात कीजिए, इनके कपड़ों के बारे में मालूमात हासिल करके अपनी कॉपियों में, बयाज़ों में इनकी इंदराज कीजिए। मालूमात आपको कॉपियों में लिखना है और उसका मुशाहिदा करना है। क्या वो साल भर इसी किस्म के कपड़े पहनते हैं? क्या मौसम के मुताबिक इनके कपड़े तब्दील होते हैं? ईद त्योहार के मौके पर इनमें कोई तब्दीलियाँ होती हैं? महाराष्ट्र में तहजीबी और जोग्राफियाई वजूहात की बिना पर लिबास में फ़र्क नज़र आता है। महाराष्ट्र की आबो हवा के लिहाज से ज़्यादातर लोग सूती कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। आइए ये करके देखते हैं। अपने दादा दादी, अम्मी अब्बू और रिश्तेदारों की पुरानी और नई तस्वीरें एक जगह जमा कीजिए। वो तस्वीरें किस साल में ली गई, इनसे पूछकर तस्वीर के पीछे लिख दें। इन्हें सन के लिहाज से यानी साल के लिहाज से तरतीब दीजिए। इनके लिबास में किस तरह तब्दीलियाँ आती गई है इसका मुशाहिदा कीजिए। इन तब्दीलियों की वजूहात मालूम कीजिए। अब देखते हैं पूरा सबक। पूरी मालूमात के बाद हमने क्या सीखा। में हम देखते हैं कि कपड़ा धागे से बनता है। ये धागा कपास, ऊन वगैरह से बनता है। कपड़ा इस्तेमाल करने से वो मैले हो जाता है, इसलिए हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहने। कपड़े धोने के लिए साबुन या रिठा, हिंग, बेट जैसी कुदरती चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पुराने कपड़े ज़ाया न करें, इनका दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। जोग्राफियाई और तहजीबी वजूहात की बिना पर लिबास में फ़र्क नज़र आता है। पहले इस्तेमाल होने वाले और अब हम जो लिबास इस्तेमाल करते हैं, इनमें फ़र्क होता जाता है। ये पूरा सबक, ये पूरी मालूमात यहाँ पर ख़त्म होती है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में सवाल और जवाब के साथ। तब तक बने रहिए तालीमी समंदर के साथ।